Welcome guys, my name is Ashishkar. In the last class we have studied about the pipette method and the grain size distribution method. But today we are going to see the numerical of the pipette method. Basically, as we already seen, the question asked from this part is mainly of numerical type, not any objective question. So this will be helpful only in case of if there is any conventional exam, that only in that case it will be helpful. So basically we will see today hydrometer method also, which is also asked in the conventional paper, not in the objective type questions or not in the objective paper. So I have this question from pipette method. We have given a dry sand sample whose specific gravity is 2.68 and weight of that sample is 125 gram, which is uniformly distributed in water to form 1 liter of suspension. इस बात का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? It means we have given that this is a sample of water and we have this soil solid whose weight is 125 gram and specific gravity equals to 2.68 is put into this water whose volume is 1000 cc, yeah, you can say 1000 ml. We can write 1000 ml as milli is also 10 to the power minus 3. This will give us also 1 liter, or you can say it is 1000 ml. So we have been asked, the first part is we have to calculate the weight of the soil immediately. We have to calculate weight immediately after suspension. It is actually unit weight. We have to find out the unit weight immediately after suspension. So its solution is very straightforward. Solution of first part, we have to find the unit weight immediately after soil suspension. So we have this. If I show you in phase diagram, we have this sand and water. This is our sand and water. We know that the total weight equals to weight of water plus weight of solid. We have given only weight of solid. We don't know the weight of water to calculate the total weight. But we also have given total volume. We have total volume which is equals to volume of water plus volume of solid. Then we can calculate from here. We can calculate volume of solid easily from डेंसिटी से, बिकॉज डेंसिटी इक्वल्स टू वेट बाय वॉल्यूम. वहां से आप इजीली वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाल लोगे. आपको टोटल वॉल्यूम पता है तो आपको यहाँ से वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑब्टेन हो जाएगा, जिसकी हेल्प से आप वेट ऑफ वाटर आप इजीली कैलकुलेट कर ही सकते हो. सो जब वेट ऑफ वाटर ऑब्टेन हो गया तो आपके पास टोटल वेट ऑब्टेन हो गया. एंड वी ऑल्सो नो द टोटल वॉल्यूम. दिस विल गिव्स अस डेंसिटी और यूनिट वेट. Unit weight will be equals to total weight over total volume. That way we can solve this question very easily. Let's see our solution. To calculate the volume of water, we need the volume of solid. So volume of solid will be given as we know the weight is 125 gram. We know the specific gravity of soil solid, that is 2.68 into 1 gram per cc, because density of water is equals to 1 gram per cc. We know density of water as 10 kilonewton per meter cube. We consider 10 kilonewton per meter cube, that is our gamma w. If we want to convert into gram per cc, then this will be 10 into 10 to the power 3, that will be Newton. To convert into mass, we have to divide it by 9.81, or do it here 9.81 also, 9.81. So this will give us mass, that will be gram, and we want to change from meter cube to centimeter cube. So we have to divide this term by 10 to the power 6. We have to divide this term by 10 to the power 6. We are moving from higher unit to lower unit, that's why we have to multiply into it.
That's why we have to multiply into it. Upon solving this, we have cancel out this thing and we have cancel out this thing. This will give us 1 divided by 10 raised to power 3. 1 divided by 10 raised to power 3. This is our this weight will be in our kilogram. This weight will be in kilogram. Why? In MKS system, that is MKS system, we have मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड. तो ये आपका किलोग्राम आएगा और ये सीसी. जब किलोग्राम से आप ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो आप अगेन 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे, जो आपको 1 ग्राम पर सीसी आपको मिल जाएगा. तो डेंसिटी ऑफ वाटर आपकी 1 ग्राम पर सीसी भी बोल सकते हैं. तो वही हमने यहाँ पे यूज किया है. इसको सोल्व करके आपके पास आएगा, दिस विल बी अराउंड 1/2 हाफ, that will be around 50 to 40 to 50. This value comes around 40 to 50. To be exact, this is 46.64 cc. 46.64 cc. This is the volume of solid. To calculate the volume of water, we know that total volume is 1000 cc minus 46.64 cc. This will give us 954 or 953.36 cc. This will be our volume of water. Now from volume of water we can calculate the weight of water. How? Weight of water will be given as volume of water, density equals to weight by volume. To calculate the volume of water, here density equals to weight by volume. To calculate the volume of water, we have weight by density. Density of water we know 1 gram per cc. So we will have weight equals to, here we have, to calculate the weight of water, we multiply V into rho, which gives us 953.36 into 1 gram per cc, which gives us 953.36 gram. This will be our weight of water. Now we know the weight of water, we know the weight of solid, that is 125 gram. So we know the total weight and we also know the total volume. We can calculate the density immediately after the soil suspension. यहाँ एक वर्ड immediately यूज किया गया है. Immediately क्यों यूज किया गया है? यदि आप सोइल सस्पेंशन, यदि ये सोइल सॉलिड्स है जो जिसका वेट 125 ग्राम है, यदि आप इसको कुछ टाइम बाद देखोगे तो ये आपके सेटल कर जाएंगे. एज वी ऑलरेडी सीन, स्टोक्स की ऑल्सो यहाँ से सेट हम क्या निकाल सकते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी भी. तो ये पार्टिकल सेटल कर जाएंगे तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, चेंज कर जाएगी. डेंसिटी विल चेंज. सो इमीडिएटली इसलिए ही पूछा गया है, हम इमीडिएटली बता पाएंगे कि क्या डेंसिटी होगी. तो यहाँ से यदि अब सोल्व करते हैं इसको, यहाँ से सोल्व करते हैं तो अब हमारे पास आएगा, ये हमारे पास था 953.36, that is weight in gram. So density आ जाएगा आपका 953.36, that is weight of water plus weight of solid divided by 1000 cc और 1000 मिलीलीटर. मिलीलीटर बोलो या सीसी, दोनों एक ही बात है, मिलीलीटर या सीसी. तो ये आपके पास कितना आएगा, सोल्व करोगे तो 1078.36 डिवाइड बाय 10⁻³ which will give us 1.078 ग्राम पर सीसी. 1.078 ग्राम पर सीसी. तो ये होगा हमारा फर्स्ट पार्ट. तो ये हमने फर्स्ट पार्ट सोल्व कर लिया. सेकंड पार्ट क्या है इसका? सेकंड पार्ट में पूछा गया है, हमने इसमें जो एक बीकर लिया था जिसके अंदर 125 ग्राम आपने मास ऑफ सॉलिड ऐड किया था टू फॉर्म अ 1000 cc soil sample. Now they are saying we have removed the 10 cc of sample from this. Let me erase the first part.
So we have this sample. Now consider this is water table. Now there is soil solids having different size. Now we have given that from depth of 20 centimeter, with the help of pipette we removed 10 ml of sample. 10 ml of, we have given 10 ml of suspension was removed from a depth of 20 centimeter beneath the top surface after 2.5 minute. Beneath the top surface after 2.5 minute मतलब क्या हुआ, ये आपको 2.5 मिनट के बाद यहाँ से रिमूव करोगे आप 2.5 मिनट के बाद रिमूव करोगे तो आपको कुछ साइज ऑफ पार्टिकल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल बीकर में जब मतलब आप पिपेट को पिपेट से सैंपल को सक करोगे तो आपको डिफरेंट साइज ऑफ सैंपल डिफरेंट साइज आप सक कर पाओगे वहां से। तो हम यहां से कैलकुलेट क्या करना चाह रहे हैं, वी हैव गिवन द ड्राई यूनिट वेट ऑफ सैंपल। जब आपने वो सैंपल को निकाला फिर आपने ओवन में आपने उसका ड्राई करके आपने ड्राई वेट निकाला जिससे आया आपका 0.398 ग्राम, दैट इज वेट ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू 0.398 ग्राम। We have to calculate determine the single point on the grain size distribution curve. We know the grain size distribution curve. We already know the grain size distribution curve. क्या होता है आपका grain size distribution curve? हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो ये होता है आपका percentage fine. This is percentage fine and this is the size of particle. Here is the percentage fine. This is the size of particle. We have seen graph something like this. तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि सिंगल पॉइंट के ऊपर आपने एक तो परसेंटेज फाइन निकालना है और एक साइज ऑफ पार्टिकल निकालना है। डिटरमाइन सिंगल पॉइंट ऑन ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कोरोस्पोंडिंग टू अबव ऑब्जर्वेशन। इन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे आपने एक पॉइंट निकालना है जिसके कोरोस्पोंडिंग परसेंटेज फाइन एंड साइज ऑफ पार्टिकल निकालना है। तो मैंने आपको थ्योरेटिकली बताया भी था कैसे निकालेंगे। तो इसमें देख लेते हैं, ये हमें डेप्थ गिवन है 20 सेंटीमीटर। सभी डाटा लिख लीजिए पहले, गिवन डाटा हमें म्यू भी गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी विच इज 8.36 मिली पोइज। इसकी यूनिट पॉइज भी होती है या फिर आप इसको न्यूटन सेकंड पर मीटर भी इसकी यूनिट होती है। और 1 पॉइज होता है आपका 1 पॉइज इक्वल्स टू 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। आपको ये ऐसे भी लिख सकते हो, ये आपका हो जाएगा एमकेएस सिस्टम में मीटर किलोग्राम एंड सेकंड, दिस विल इन सीजीएस। यदि आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा आपके पास 1 किलोग्राम डिवाइड बाय मीटर सेकंड, और ये जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड। दैट्स व्हाई 0.1 पॉइज इक्वल्स टू 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। 0.1 Newton second per meter square. So we have 8.36 millipoise. We can then write down it in SI unit equals to milli will be given. Milli has 10 to the power minus 3. Then 0.1. This will give us Newton second per meter square, which will be mu value will be 8.36 into 10 to the power 5 for Newton second per meter square. This will be mu value. So this is the data given to us. On the basis of data we have to find out the percentage fine and the size of particle. To find out the percentage fine, we know that the initial concentration, we know that the 125 gram ml is put into the soil sample. We know the initial concentration will be 125 gram divided by 1000 milliliter, or you can say cc. This will be 120.125 gram per cc, 0.125 gram per cc. अब हमें बाद की कंसंट्रेशन निकालनी है, so that we can calculate the percentage fine. We know that after the we obtain the weight sample as 0.398 gram. So after concentration will be 0.398 gram divided by 10 ml
which will gives us this ml can be written as cc also. So 0.0398 gram per cc. 0.0398 gram per cc. We can calculate directly percentage fine now. That is equals to 0.125, sorry, 0.0398 divided by 0.125 into 100. This will gives us, this is 1 by 8. So if we multiply this by 8, this will gives us 31.84%. But how to calculate the size of the particle? Now to calculate the size of particle, we have given that after 2.5 minute, time equals to 2.5 minutes, which is also equals to 150 seconds, which is also equals to 150 seconds. From here, we need to find out the size of particle. We know hc by t is given as per the Stokes law, gs minus 1 gamma w d square divided by 18 times coefficient of viscosity. We have everything. We know the depth from which the y, this is our velocity. This is also called terminal velocity. From there we have to calculate the terminal velocity. We know that this particle size, जो ये पार्टिकल साइज है, ये सर्टेन टाइम के बाद नीचे पहुंचेगा, तो उसका टाइम पीरियड हमें गिवन था 2.5 मिनट. तो 150 सेकंड के बाद ये पार्टिकल जब नीचे जाएगा तो आपको पता है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो उसके बेसिस के ऊपर आपको टर्मिनल वेलोसिटी मिलेगी. तो उससे हेल्प से आप डी निकाल पाओगे. पुटिंग ऑल द डाटा, 20 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 150 सेकंड, gs we know 2.68, that minus 1, gamma w is 1 gram per cc, and diameter square divided by 18 times coefficient of viscosity, which is equals to 8.36 into 10 to the power minus 4. So this will gives us d square. This will gives us value of d. Convert it into 10 to the power minus 2. All are in the standard units. So from here we get the value of d equals to 39.4 micron. 39.4 micron. That is 10 to the power minus 6. So we have the size equals to 39.4 micron. So we now know a point where we have the size equals to 39.4 micron and percentage fine equals to 31.84. So this is our question based on pipette method. ये क्वेश्चन जनरली कन्वेंशनल क्वेश्चन है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा वैसे. अदरवाइज इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट, मैसेज करना मुझे या कमेंट करो नीचे, ताकि मैं इसके लिए दोबारा वीडियो बनाऊं यदि कुछ समझ में नहीं आया तो. अब हम देखेंगे हाइड्रोमीटर मेथड. हाइड्रोमीटर मेथड देखेंगे, सेकंड मेथड इन द सेडिमेंटेशन एनालिसिस. हाइड्रोमीटर मेथड में क्या है, आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है हाइड्रोमीटर, उसी की बेसिस पे नाम इसका पड़ा है हाइड्रोमीटर मेथड. ये भी यूज होता है आपका फाइन ग्रेन सॉइल के लिए, सीविंग के लिए. फाइन ग्रेन सॉइल की सीविंग के लिए यूज होता है. वो साइज इज ग्रेटर देन 2 माइक्रोमीटर, जिसका साइज सॉइल का 2 माइक्रोमीटर से ज्यादा है, उनके लिए ये यूज होता है आपका. उन साइज के लिए आपका यूज होता है. तो वी हैव नाउ हाइड्रोमीटर मेथड. सेकंड मेथड दैट इज हाइड्रोमीटर मेथड. इस मेथड को समझने के लिए आपको एक एक बात ध्यान से सुननी है. कहीं भी बीच में रुकोगे तो जहां भी साथ छूटेगा वहां से समझना भूल जाओगे आप. वहां पे उसका अगला स्टेप आपको समझ नहीं आएगा, तो ध्यान से समझना है कैसे ये हाइड्रोमीटर मेथड कैरी आउट करते हैं. डन टू फाइंड आउट ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन. ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन इन फाइन ग्रेन सॉइल. In fine
grained soil, in fine grained soil. So basically we have this hydrometer something like this. ये हमारे पास हाइड्रोमीटर कुछ इस तरीके का रहता है। बेसिकली इसमें हाइड्रोमीटर क्या करता है, आपको डायरेक्टली स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ दीज मेजरमेंट्स। और इफ यू हैव द स्पेसिफिक ग्रेविटी यू कैन आल्सो कैलकुलेट द यूनिट वेट ऑफ soil sample in which the hydrometer is placed basically. So we can write this as, we can write it directly this as, it provides, hydrometer method provides, it provides specific gravity of soil sample, specific gravity of soil sample। जो ये हाइड्रोमीटर है इसका कैलिब्रेशन इस ढंग से किया होता है। कैलिब्रेशन आप ऐसे समझ लीजिए, इसका इक्विपमेंट की जनरेट इस ढंग से किया हुआ है, बनाया इस तरीके से है कि ये आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सैंपल प्रोवाइड करे। अब यदि आप इसको लेट दिस इज अवर सॉइल सैंपल, लेट दिस इज अवर सॉइल सैंपल, here we have reading like consider it -5, 0, 5, 10, 15, 20 and something like this. We have these reading, one on the basis of RH value, these are the our RH value, and here we have density. We know that the specific gravity is given as 1 plus RH divided by 1000. This is the formula for calculation of specific gravity in the hydrometer. ये RH वैल्यू है आपकी। RH वैल्यू कैसे ऑब्टेन होगी, जब जहां पर आपका लेवल स्ट्राइक करेगा उसकी हेल्प से, जब ग्राउंड लेवल पे जहां पर वाटर लेवल है और जहां पे आपका हाइड्रोमीटर की रीडिंग है वहां से आप डायरेक्टली मेजर कर पाओगे अपनी RH की वैल्यू और वहीं से आप स्पेसिफिक ग्रेविटी की भी वैल्यू निकाल पाओगे। तो आप ऐसे इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। अब बात करते हैं यदि सोयल सैंपल प्रिपरेशन की। वी हैव सीन द सोयल सैंपल प्रिपरेशन इन द लास्ट क्लास आल्सो। एज्यूम करते हैं हमारे पास सोयल सैंपल है जिसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है 50 ग्राम पर सीसी। मतलब क्या हुआ, 50 ग्राम पर सीसी का हमारे पास प्रिपेयर्ड सोयल सैंपल है। ये 50 ग्राम है, यदि ये आपका मान लिया 50 ग्राम है और ये 1000 ml है, 1000 ml वाटर है, तो जब आप सोल्व करोगे 50 ग्राम बाई 1000 ml ये आपको मिलेगा 50 ग्राम पर 1000 ml इज ऑल्सो 1000 cc। ये आप 1 लीटर मानो, 1 लीटर, दिस विल गिव्स अस 1 लीटर विल गिव्स अस 50 ग्राम पर लीटर हो जाएगा। फिर आपका ये जो सॉल्यूशन हो गया 50 ग्राम पर लीटर। आपके पास कितना क्या है, 50 ग्राम पर लीटर का इनिशियल सोयल सैंपल है, जिसकी हेल्प से आप फर्दर, जैसे हमने लास्ट क्लास में लास्ट मेथड में देखा है पिपेट मेथड में, जिसमें हमने कहा था यदि इनिशियल कंसंट्रेशन वी हैव एंड वी आल्सो हैव फाइनल कंसंट्रेशन देन दिस विल गिव्स अस परसेंटेज फाइन्स, दिस विल गिव्स अस परसेंटेज फाइन एंड डी इज गिवन डायरेक्टली थ्रू स्टोक्स लॉ, डायरेक्टली थ्रू स्टोक्स लॉ। यही दोनों मेथड यहाँ भी यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है और स्पेसिफिक ग्रेविटी की हेल्प से ही हमें निकालना होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी की हेल्प से ही हमें ये आफ्टर ये फाइनल कंसंट्रेशन को निकालना होगा, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन तो हमें ऑलरेडी पता है, तो फाइनल कंसंट्रेशन निकालनी होगी जिसकी हेल्प से हम परसेंटेज फाइन निकाल पाएंगे, जिसकी हेल्प से हम परसेंटेज फाइन निकाल पाएंगे। तो फाइनल कंसंट्रेशन कैसे निकलेगी, टू कैलकुलेट दिस फाइनल कंसंट्रेशन वी हैव द डेरिवेशन, उस डेरिवेशन को देखेंगे पहले, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं ये वर्किंग कैसे है इसकी। ये एक हमारे पास
स्टील या हैवी मेटल रहता है, ये हैवी मेटल रहता है जो इसको वर्टिकली मेंटेन रखता है हाइड्रोमीटर को। तो हाइड्रोमीटर में बेसिकली रीडिंग कैरी आउट करने के लिए इफ वी हैव द इनिशियल सॉइल सैंपल लाइक दिस, लाइक वी हैव दिस, if we have the soil sample like this, initial soil sample like this, now if when we insert the hydrometer in this, their water level is supposed to be rise. This water level is supposed to be rise because of the volume we displaced due to the hydrometer. Now if I want to take a certain depth He, which we have seen in the pipette method also, इस डेप्थ के ऊपर He डेप्थ के ऊपर आप क्या निकालना चाहते हो, आप निकालना चाहते हो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सैंपल, स्पेसिफिक ग्रेविटी, और उसके आप से आप आफ्टर कंसंट्रेशन जो आएगी, कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल जो आएगी वहां से निकालना चाहते हो ताकि आपके पास परसेंटेज फाइन ऑब्टेन हो। तो इस डेप्थ पे जब आप निकालोगे तो He कैसे निकालोगे, हमारे पास फॉर्मूला था ना He/T GS-1 गामा W d square divided by 18 mu. This is formula given by Stokes. तो हमें जो निकालना है वो He निकालना है, इफेक्टिव हाइट जिससे आप सैंपल निकाल रहे हो। तो कैसे निकालोगे आप, और टाइम हमें पता होगा, हम स्टॉप वॉच लेके बैठेंगे। स्टॉप वॉच को हम जब बेसिकली क्या करेंगे, कुछ टाइम के बाद, जैसे आपने ये इंसर्ट किया है जस्ट अभी, आपने कुछ टाइम बाद स्टॉप वॉच को बंद किया तो आपको He की डेप्थ पता होगी, वहां से कैलिब्रेशन चार्ट से आपको, आपके पास He भी पता होगा, T भी पता होगा, जिसके आज से आप ये दोनों वैल्यू निकालोगे। अभी देखते हैं पहले He कैसे निकलेगा, क्योंकि ये राइज कर गया है, क्योंकि ये जो पॉइंट है आपका राइज कर गया है। कुछ पॉइंट ये यदि जैसे ही आप इसके अंदर इंसर्ट करोगे हाइड्रोमीटर, ये भी आपका राइज कर जाएगा कोरस्पॉन्डिंग टू दिस वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। यहाँ पे अब ध्यान से समझो, यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात है, यदि इसका VH इज द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर, इफ VH इज द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर एंड AJ इज द एरिया ऑफ जार, ये जार का एरिया आपका हाइड्रोमीटर का एरिया नहीं है, एरिया ऑफ जार, दैट्स व्हाई J इन द सबस्क्रिप्ट। ये एरिया ऑफ जार डिवाइड बाय ये है वॉल्यूम ऑफ आपका हाइड्रोमीटर, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास एक डेप्थ आएगी, जो डेप्थ ये होगी, क्योंकि यही डेप्थ आपकी एक्चुअली राइज कर गई है ड्यू टू द पुशिंग ऑफ हाइड्रोमीटर इन द वाटर। तो ये डेप्थ आपकी राइज कर जाएगी। तो बेसिकली हुआ क्या है यहाँ पे, जब आप इस डेप्थ को नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा जो ये पॉइंट है ये आपका शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ, जहां पर अपने को रीडिंग निकालनी थी। हमें अब एग्जैक्टली निकालनी है कि ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा। इसको बोलते हैं हम पार्ट को स्टेम, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज स्टेम एंड दिस इज कॉल्ड एज बल्ब और बल्ब एंड दिस इज कॉल्ड स्टेम। तो आपके पास जो स्टेम की हाइट होती है वो होती है h1, इफ दिस हाइट इज h1 and if this height is h, then how do we proceed to calculate the our h1 जो है वो आपकी सरफेस तक होती है, इट इज नॉट अप टू कंप्लीट आपके स्टेम के कंप्लीट स्टेम के पार्ट की नहीं होती, ये सरफेस तक की होती है h1। तो ये आपका h1 पार्ट है, ये आपका h पार्ट है। इन दोनों की हेल्प से अब हमने जो निकालना है वो निकालना है He की वैल्यू। वी हैव टू कैलकुलेट द He वैल्यू। आई होप आप इतना समझ में आ रहा होगा। He को निकालने के लिए हम देख सकते हैं H1 प्लस H, बट H1 प्लस H जो है वो आपका एक्चुअली लिफ्ट कर गया है, ऊपर की तरफ हाइट हो गई है। तो यदि ये आपकी डेप्थ थी तो इतने पोर्शन के नीचे अप टू दैट पोर्शन ओनली हमारा जो वाटर डिस्प्लेस हुआ होगा वो हुआ होगा इसका हाफ, क्योंकि जनरली क्या होता है इसके नीचे का जो वाटर जो ये वॉल्यूम है
जो इतना वॉल्यूम है वो आपका ऑलमोस्ट हाफ होता है एज कंपेयर टू दिस वॉल्यूम, एज कंपेयर टू दी टोटल वॉल्यूम दिस वॉल्यूम इज हाफ। यदि ये वॉल्यूम हाफ है तो ये हाफ वाटर को ही लिफ्ट कर देगा ऊपर की तरफ, हाफ वाटर को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा और ये पॉइंट हाफ लिफ्ट होगा। तो कैसे लिखेंगे, H इक्वल टू H1 प्लस H इक्वल टू H1 प्लस H। अब यहाँ पर देखो क्योंकि पानी लिफ्ट हो गया है तो ये क्या हो गया है प्लस VH बाई AJ, बट हमें क्या निकालना है HE, तो ये आपका हो जाएगा माइनस VH बाई AJ प्लस, अब क्योंकि ये तो क्या हुआ आपने उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया है, इसकी हाइट में से VH बाई AJ को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया है ताकि आपका वहीं पर पॉइंट आ जाए, लेकिन ये एक्चुअली नीचे चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि आपने टोटल को ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो टोटल को ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, आपने उसका हाफ सब्ट्रैक्ट करना था, तो आपको प्लस करना पड़ेगा VH बाई 2AJ, VH बाई 2AJ, तो यहां से आपको HE की वैल्यू ऑब्टेन होगी। अब ये तो हमारी हुई HE की वैल्यू। तो आपको यदि मैंने जैसे कि बताया था टू कैलकुलेट द T वैल्यू कैसे करेंगे, जैसे टाइम पास होगा तो ये जो सोयल ग्रेन्स थे इसके अंदर, जो सोयल ग्रेन होंगे इसके अंदर एज द टाइम पासेज, ये जो सोयल ग्रेन्स होंगे कुछ बड़े साइज के कुछ छोटे साइज के, तो ये सोयल ग्रेन सेटल कर जाएंगे आपके, ये सोयल ग्रेन सेटल करेंगे, तो ये सोयल ग्रेन सेटल करने से जो हाइड्रोमीटर होगा उसकी डेंसिटी के ऊपर इफेक्ट आएगा। ऑब्वियसली डेंसिटी ऑफ वाटर पे इफेक्ट आएगा यदि सोयल सॉलिड सेटल करेंगे, उसी के कारण डेंसिटी ऑफ जो आपकी हाइड्रोमीटर है जो मेजर कर रहा था वो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला दैट वी नो GS equals to 1 plus RH by 1000 and RH will be calculated from here reading values, तो वो इफेक्ट करेगा जैसे जैसे टाइम पास होगा, मतलब कि जैसे टाइम बीतता चला जाएगा तो उस केस में क्या होगा, ये सबमर्ज करेगा तो आपके क्या मिलेगी, लोअर रीडिंग मिलना शुरू करेगी आपको जैसे यदि HE पहले मान लिया हमारे पास ये जो वैल्यू है हमारे पास 20 सेंटीमीटर थी, उसके लिए टाइम लगा मान लेते हैं 60 सेकंड। आपने 60 सेकंड के बाद देखा कि ये जो वैल्यू निकालोगे आप, जिसमें आपका वेरिएबल क्या है H1, हर टाइम आपका H1 चेंज होगा, ये वैल्यू आपकी कंटिन्यूसली चेंज होगी, क्योंकि ये जो पार्ट है स्टैम्प का, ये देखो ये कांस्टेंट रहेगा, ये पार्ट है, ये रीडिंग बढ़ती चली जाएगी आपकी, क्योंकि ये सबमर्ज करता चला जाएगा, क्योंकि डेंसिटी आपकी रिड्यूस होती चली जाएगी। क्यों रिड्यूस होती चली जाएगी, क्योंकि ये सोयल सॉलिड सेटल करते चले जाएंगे तो डेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी वाटर की, जिसके कारण ये भी नीचे की तरफ सबमर्ज होना शुरू कर देगा अपने वेट के कारण। तो उस केस में आपके पास H1 की वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि ये पार्ट आपका बढ़ता चला जाएगा, दैट्स व्हाई H1 की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। तो नेक्स्ट रीडिंग यदि हम 22 सेंटीमीटर लेते हैं आफ्टर मान लेते हैं क्यूमुलेटिव, यदि टाइम है ये T क्यूमुलेटिव है, क्योंकि आपके पास स्टॉप वॉच है ना, आपने 60 सेकंड पे रिकॉर्ड किया, फिर आपने रिकॉर्ड किया 120 सेकंड के ऊपर, तो आपको पता चला 60 सेकंड के अंदर इसका सबमर्जेंस 2 सेंटीमीटर बढ़ गया है, 60 सेकंड के अंदर 2 सेंटीमीटर ये ज्यादा सबमर्ज कर गया है, तो आपके पास क्या मिल गया HE/T। आपके पास हर बार ऐसे ही HE/T कंटिन्यूसली मिलता चला जाएगा, तो जिसकी हेल्प से आप D की वैल्यू हर पॉइंट पे निकालोगे, ताकि आपके पास ये जो डायग्राम है हमारे पास ये मिलता रहे, परसेंटेज फाइंड हेयर एंड साइज ऑफ पार्टिकल हेयर। तो आपके पास D भी मिलता चला जाएगा, कैसे मिलेगा, D यहाँ से मिलेगा, और परसेंटेज फाइन कैसे मिलेगा, क्योंकि परसेंटेज फाइन हमने देखा है, इनिशियल कंसंट्रेशन पता है हमें और फाइनल कंसंट्रेशन भी पता है, तो आपको परसेंटेज फाइन कंटिन्यूसली मिलता चला जाएगा इसी पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन फाइनल कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, वो जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो हमें देखना है, जिसे हम वेट कंसंट्रेशन भी बोलते हैं। वेट कंसंट्रेशन हमें पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सोइल सैंपल फ्रॉम द फॉर्मूला दैट वी हैव गिवन, so that we have know, so from there we can calculate the weight concentration। उसकी डेरिवेशन मैं अभी आपको बताता हूँ।
I think you understand the part I have told right now. So let's see what is the weight concentration and how do we proceed to calculate it. Let me erase this part. So we have to find out WD value from specific gravity. We know that the specific gravity is given as unit weight of solid to the unit weight of water, and unit weight of solid is given as weight of solid divided by volume of solid into unit weight of water. So how do we proceed to from here? हम यहाँ से आगे कैसे प्रोसीड करेंगे? हमें इसको इस पॉइंट से भी लिख सकते हैं. ये हम डेंसिटी ऑफ सॉलिड टू द डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर भी लिख सकते हैं. कैसे लिख सकते हैं? ये क्या है आपका डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी. ये है आपका डेंसिटी ऑफ सॉलिड डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी. These both cancel out each other and we will have specific gravity is the ratio of density of solid to the density of water. And from here we can see that is density equals to weight by volume. Density equals to weight divided by volume and we know the density of water. यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको. यहाँ तक समझ में आ गया होगा. तो इसके बाद हम लिख सकते हैं इसको वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर. इतना भी समझ में आ गया होगा. तो वेट ऑफ वाटर को आप कैसे लिख सकते हैं? डेंसिटी हमको पता है वेट बाय वॉल्यूम, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम दैट इज डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर. सिमिलरली वेट ऑफ सॉलिड को कैसे लिख सकते हैं? वेट ऑफ सॉलिड को लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. सो वी कैन राइट फ्रॉम हेयर. यहां से हम लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर. दिस इज आवर स्पेसिफिक ग्रेविटी. फर्दर इसको रीअरेंज करेंगे. लेट मी राइट हियर. देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो ऑलरेडी है इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर. हियर वी हैव वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर वी रिक्वायर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर एंड माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर. So that we have this point here common. This will give us volume of water plus volume of solid into density of water plus density of solid minus density of solid. This is density of water and this is density of water also. Further we can write this density of solid into density of water into volume of solid divided by volume of water plus volume of solid into density of water. These terms cancel out each other. We have left with 1 plus density of solid minus density of water into volume of solid divided by volume of water plus volume of solid into density of water. Density of water. So we have left with this. The purpose is to do calculation till we not obtain the WD. To obtain the WD, what we will do is we multiply G and density of solid in numerator as well as in denominator. In numerator and denominator, we know this is V. This will give us gamma W, and if we take density of solid inside this, we will have 1 plus density of solid. If we divide, that will cancel out each other and this will give us 1 minus 1 by G. If we divide density of solid here, this will give us 1 by G into volume of solid times G times density of solid divided by volume into unit weight of water. So what is this? This is G into unit weight of solid gives us density of solid, and we know that the weight equals to
volume times density of solid, and this will give us weight concentration. This will give us weight concentration or after concentration. WD value will be obtained from here. The value of WD will obtain from here. This is our GS. This will give us GS equals to 1 plus 1 minus 1 by G WD divided by V into gamma W. This is the specific gravity that we have obtained. Basically ये जो है आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी तो डायरेक्टली पता था, फॉर्मूले से 1 प्लस RH बाई 1000 होती है। RH आपको हाइड्रोमीटर से ऑब्टेन होता है, तो आप स्पेसिफिक ग्रेविटी तो डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते थे यहाँ से, तो आपने डिराइव करके आफ्टर कंसंट्रेशन को भी निकाल लिया है। अब जब यहाँ से आप वेट कंसंट्रेशन निकालोगे रीअरेंज करके, तो आपको मिलेगा RH टाइम्स GS गामा W डिवाइड बाई 1000 टाइम्स GS माइनस 1, 1000 टाइम्स GS माइनस 1। आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हो विदाउट गोइंग इनटू द डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला, क्योंकि डेरिवेशन आप पेपर में तो नहीं करोगे और पेपर में करनी भी नहीं है, क्योंकि आपको डायरेक्टली फॉर्मूला ही अप्लाई करना है ताकि आप अपना टाइम भी बचा सके। पेपर में इतना टाइम बिल्कुल नहीं होता कि आप डेरिवेशन करने बैठो। तो आपको वेट कंसंट्रेशन यहाँ से आ जाएगी। इनिशियल कंसंट्रेशन हमें पता थी, तो WI डिवाइड बाय WD टाइम्स 100, दिस विल गिव अस परसेंटेज फाइननेस, this will give us percentage fines, this will give us percentage fine of soil. So now we have both percentage fine as well as size of the soil. Now we have both percentage fine and the size of soil. From there we can easily draw our grain size distribution diagram. Grain size distribution diagram. अब कुछ हाइड्रोमीटर के ऊपर ही कुछ करेक्शंस होती हैं, हाइड्रोमीटर में कुछ करेक्शंस करनी होती है, जिसके बेसिस पे आपको रीडिंग RH की चेंज होती है। बेसिकली RH की रीडिंग उन करेक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। हमारे पास 3 मेजर करेक्शंस होती हैं, 3 करेक्शंस इन RH वैल्यू। आवर फर्स्ट करेक्शन इज मेनिस्कस करेक्शन। मेनिस्कस क्या होता है? आपका जो फ्लूइड होता है ना, उसको ही मेनिस्कस बोलते हैं। जैसे हमने देखा था, ये जो कंटेनर था, हमने इसके अंदर इंसर्ट किया था हमारा हाइड्रोमीटर, ये हमारा हाइड्रोमीटर था। तो जनरली क्या होता है, जब आपका जो लेवल होता है, ये हमारे पास था H1, तो ये जनरली स्टिक कर जाता है पानी ऊपर की तरफ ड्यू टू सरफेस टेंशन। उस केस में जो आपको रीडिंग मिल रही होगी यहाँ पे, जैसे हमने देखा था रीडिंग क्या थी यहाँ पे 0, 1, 2, 3 ऐसे एज्यूम किया था हमने, ये -5, 10, 15, 20। तो आपको जो रीडिंग मिलेगी वो आपको एज कंपेयर टू कम मिलेगी। आपको रीडिंग जो यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि मेनिस्कस करेक्शन की वजह से, तो आपको रीडिंग कम मिलेगी। वो उस केस में आपकी RH वैल्यू चेंज हो जाएगी, उसमें RH की वैल्यू में आपका चेंज आएगा। तो करेक्शन क्या होता है? फॉर्मूला होता है करेक्शन का ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। आप सर्वे में भी ये बहुत ज्यादा यूज करोगे। करेक्शन का फॉर्मूला होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू कितनी थी? यदि जनरल बात करें तो आपकी ट्रू वैल्यू जो आएगी वो आएगी ज्यादा। जैसे कि इस केस में मान लेते हैं 30 आती, और जो आप फील्ड से मेजर करके आए हो वो आएगी 25 या फिर और कुछ। तो ये आपकी करेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव करेक्शन होती है। ये आपकी करेक्शन जो होती है पॉजिटिव करेक्शन होती है, आपकी मेनिस्कस करेक्शन। तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। हमारे पास सेकंड करेक्शन है, that is due to temperature. If there is change in temperature, then also density will change. Temperature correction. If temperature correction कैसे लगाएंगे? जब आपका यदि टेम्परेचर नॉमिनल टेम्परेचर से T0 से ज्यादा है, तो उस केस में ये जो लिक्विड होगा, लिक्विड बॉयल कर जाएगा, तो उस केस में डेंसिटी आपकी
डेंसिटी आपकी फॉल कर जाएगी, डेंसिटी आपकी कम हो जाएगी, जिसके कारण से ये जो हाइड्रोमीटर है वो ज्यादा सबमर्ज कर जाएगा। सेम अगेन हाइड्रोमीटर आपका ज्यादा सबमर्ज कर जाएगा, पहले वाले के अपोजिट में है। पहले में केस में आपको ज्यादा रीडिंग, कम रीडिंग मिल रही थी, अब केस में ये क्योंकि नीचे चला जाएगा तो उस केस में आपको जो वैल्यू मेजर करोगे अगेन 20, 25 ऐसे वैल्यू आप मेजर करोगे। तो इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन नॉमिनल टेम्परेचर देन द करेक्शन विल बी पॉजिटिव। करेक्शन, दिस करेक्शन विल बी पॉजिटिव। कैसे देखते हैं, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अगेन क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया है तो आपकी ये नॉमिनल टेम्परेचर से तो नीचे चला जाएगा। उस केस में आपकी यदि ट्रू वैल्यू यदि 30 थी तो आपको 25 मिलेगी। ट्रू वैल्यू यदि आपकी 30 थी तो आपको 25 मिलेगी। तो ये क्या हो जाएगा, आपको मिली 25 सॉरी ये आपका हो जाएगा, दिस विल बी अवर ट्रू वैल्यू आपको मिलेगी, ट्रू वैल्यू आपकी 30 और मेजर्ड वैल्यू 25। सो दिस विल बी पॉजिटिव करेक्शन। ऐसे समझ लो यदि टेम्परेचर आपका नॉमिनल टेम्परेचर से बढ़ जाता है तो करेक्शन पॉजिटिव है, अदरवाइज नेगेटिव है। दोनों ही केस में पॉजिटिव आया है, लेकिन इस केस में दिस इज व्हेन टेम्परेचर इज ग्रेटर देन नॉमिनल टेम्परेचर। इन रिवर्स सिचुएशन दिस करेक्शन विल बी पॉजिटिव, दिस करेक्शन विल बी नेगेटिव, दिस करेक्शन विल बी नेगेटिव बिकॉज जो आपका अगेन ये चेंज हो जाएगा इस केस में। अब टेम्परेचर जब आपका कम हो जाएगा तो ये डेंसिटी बढ़ जाएगी लिक्विड की, उस केस में ये इसको ऊपर की तरफ पुश करेगा, जिस कारण रीडिंग आपको जो मिलेगी वो आपको ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू अर्लियर सिचुएशन। यदि ये ऊपर चला जाएगा तो क्या मिलेगी रीडिंग आपको, ये आपके पास यहाँ पे 45, 60 तो आपको ज्यादा रीडिंग मिलेगी। तो उस केस में आपकी करेक्शन नेगेटिव होगी। एक है हमारे पास थर्ड करेक्शन, दैट इज अवर डिस्पर्जिंग एजेंट करेक्शन। डिस्पर्जिंग एजेंट करेक्शन ये हमने बताया था इनिशियली, जो जब हमने प्रिपरेशन ऑफ सोइल सैंपल किया था तो मैंने बताया था सोडियम ऑक्सलेट यूज करते हैं या फिर मेटाफॉस्फेट यूज करते हैं, सोडियम फॉस्फेट यूज करते हैं। उस केस में हमने बताया था ये यूज करते हैं डिस्पर्जिंग एजेंट और डिफ्लोकुलेटिंग एजेंट टू डिस्पर्स द सोइल सैंपल, ताकि आपका सोइल सैंपल का साइज बढ़े ना। उस केस के लिए हमने डिस्पर्जिंग एजेंट यूज किया था। तो लेकिन इनके कारण से आपकी जो डेंसिटी ऑफ सोइल सैंपल है वो चेंज हो जाएगी। डेंसिटी ऑफ सोइल सैंपल विल चेंज, जिसके कारण डेंसिटी ऑफ सोइल सैंपल आपकी चेंज हो जाती है। ये जो सोइल पार्टिकल्स हैं, क्योंकि डेंसिटी से ही हमको RH की वैल्यू देता है, तो RH की वैल्यू में करेक्शन लगानी पड़ेगी। क्योंकि डेंसिटी आपकी बढ़ गई है, कोई यदि पानी से ज्यादा ही होगा, यदि आप कुछ चीज डालते हो सोइल के अंदर, सोइल सैंपल के अंदर, तो उसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा होगी, तो वाटर से ज्यादा होगी तो ये डेंसिटी ओवरऑल इस सिचुएशन में बढ़ जाएगी। तो ये आपका ये आपका ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। हाइड्रोमीटर की रीडिंग आपकी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, जिस केस में आपको जो वैल्यू मिलेगी यहाँ पर 40, जैसे यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी 40 या फिर उसके अराउंड वैल्यू मिलेगी, एज्यूम करते हैं 40 मिली, तो करेक्शन जब लगाएंगे ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू जो होगी इसकी वो तो होगी आपकी 30 के अराउंड, और मेजर वैल्यू जो है 40 है जो हमने मेजर की है। तो ये जो करेक्शन आएगी हमारी नेगेटिव आएगी, और दिस करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। सो डिफ्लोकुलेटिंग एजेंट या फिर डिस्पर्जिंग एजेंट करेक्शन इज नेगेटिव। डिस्पर्जिंग एजेंट करेक्शन इज नेगेटिव। डिस्पर्जिंग एजेंट करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, ये लिख लीजिए, करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। और एक यदि अब तीनों को कंबाइन करें करेक्शंस को, तो हमारे पास जो RH की वैल्यू आएगी वो आएगी RH प्लस माइनस C, या फिर इसको लिख करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर माइनस करेक्शन ड्यू टू डिस्पर्जिंग एजेंट प्लस करेक्शन ड्यू टू मेनिस्कस, प्लस करेक्शन ड्यू टू मेनिस्कस। ये आपकी RH की फाइनल वैल्यू होगी
जिससे आप स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सैंपल निकालोगे। अगेन वो फॉर्मूला हमारा क्या था, GS इक्वल्स टू 1 प्लस RH, यहाँ पर ये करेक्टेड यूज कर रहे हैं अब, RH करेक्टेड डिवाइड बाय 1000। तो ये हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पे यूज करेंगे, जिससे हमने डायरेक्टली वेट कंसंट्रेशन भी बाद में निकाला था। तो ये हमने वेट कंसंट्रेशन से हमने परसेंटेज फाइन निकाल चुके थे, और परसेंटेज फाइन हमें पता है, साइज हमें पता है, तो हमने क्या निकाल दिया, GSD निकाल दिया, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये था आपका हाइड्रोमीटर मेथड। क्वेश्चन इससे ज्यादा वैसे पूछे नहीं गए हैं, लेकिन पता होना चाहिए, क्योंकि कन्वेंशनल में ही पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव में तो आपके इसके क्वेश्चन बनते भी नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।